welcome. You're watching Doctor Speak. It's a live call-in show where you can call us and ask your questions. We'll be flashing two numbers on your screens. You can note them down and call us on these numbers and ask your queries on COVID-19. Our expert panel of guests will be answering them for you. We are also there live on social media, so you can post your queries to the live link that you will see on the DD News' Facebook page. I'm Munmun Bhattacharya and with me is my colleague Jyotika Grover. शुक्रिया मुनमुन, नमस्कार, स्वागत है डॉक्टर स्पीक में आपका। और जल्दी से हम आपका तारुफ करा देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल गुर्तू हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, LHMC। नमस्कार सर, स्वागत है। डॉक्टर विभा मेहता है, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन। मैम नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुर्तू, आपके पास आती हूँ। शुरुआत करते हैं। पिछले 5 सप्ताह से कोरोना के नए मरीजों की अगर दैनिक औसत संख्या देखें तो उसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से एक बड़ी उपलब्धि मानते हुए उन्होंने कहा है परीक्षण की पहचान यानी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का जो मंत्र है वो इसमें सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है और इसी को आगे भी फॉलो किया जाएगा। हाँ, तो दर पूरे देश भर में अगर हम नज़र डालें तो दर में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। 50,000 से भी कम हो गए हैं, लगातार गिर रहे हैं। और पॉजिटिविटी रेट भी पूरे देश में देखा जाए नेशनल लेवल पे वो कम हो रही है। वो बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट का गिरना एक निशानी है, संकेत है कि टेस्टिंग अच्छी हो रही है, ज़्यादा हो रही है और ट्रांसमिशन कम हो रहा है कम्युनिटी में। तो ये देखते हुए दरों में गिरावट और पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट लगातार कंट्री लेवल पे, देश के लेवल पे, स्तर पे, ये अच्छी निशानी है और एक अच्छा संकेत है। शर्त है कि हम अपना व्यवहार जैसा है वो बनाए रखें। Absolutely. Also, Dr. Vibha is with us. Dr. Vibha, while we are seeing that the numbers are turning positive as far as India is concerned, considering that, like Jyotika said, for 5 weeks, the daily COVID-19 fresh infections numbers is going down. We are also seeing that there are 5 states where the challenge is quite still there. For instance, in Delhi, West Bengal, Kerala, Karnataka and Maharashtra, we are seeing that these 5 states account for nearly 50% of the fresh infections. What is it that these states need to do so that they too are able to fight the pandemic just as well as other states are? So many states have had so many ups and downs. The cases come down, then they come up. In Delhi also we have seen the cases went up, then came down a little, then again up. So I think only the government cannot help us. We as public people have to take lots of precautions as guided by the government, that we have to keep wearing masks whenever we step out of the house, keep social distancing, and do not move out of the house if it is not very essential. Plus taking care of hand sanitization, hand hygiene, respiratory hygiene. Plus the government has to, already in Delhi we are doing sufficient number of tests, but earlier for a few months we have been doing more of rapid antigen tests. So we have to increase the RT-PCR testing, which has been increased, but what I am seeing is the reports are coming quite late. After 3-4 days patients are getting reports of RT-PCR test, which has to be enhanced. So testing, tracking, tracing and treating the patients, we have to continue this formula in all the states. And plus the festivals are approaching, like we had the Navratri just now. So some restrictions have to be followed. Not going out in public places, in crowded places, like religious places. You can worship at home also. And in weddings have started, functions have started, restaurants have opened, clubs have opened. So people have to take their precautions to decrease the number of cases. Right. डॉक्टर अनिल, आपके पास आना चाहेंगे एक सवाल के साथ कि कुछ भ्रम और भ्रांतियां लोगों में फैलती हुई नज़र आ रही हैं कि अब क्योंकि मौसम सर्दी का आएगा, बहुत सारी और फ्लू इन्फेक्शन जो इस मौसम में आम देखी जाती हैं, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, वायरल फीवर जो आम होता ही है इस मौसम में,
कैसे देखते हैं आप इसे कि जो एक भ्रम और भ्रांति, हमें कल भी कुछ सवाल आए थे कि कोरोना की जो मार है वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ सकती है इस मौसम में, आप इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे, किस तरह से समझाएंगे? बढ़ती ठंड और बढ़ता पॉल्यूशन उसके साथ साथ, और इनके साथ आएंगी कुछ और बीमारियां। नवंबर तक तो डेंगू मलेरिया हमारे साथ है ही, उसके बाद ये कम हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और नई बीमारी उभर के आएगी सांस के जरिए जो आती है, इन्फ्लुएंजा और जितने भी ये सांस के जरिए आने वाले कीटाणु हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया, इनकी इनकी ये पकड़ेंगे जोर। अब सवाल ये है कि जिसको कोविड है और जुड़ जाता है एक और बीमारी, कोई और बीमारी जुड़ जाती है, डेंगू जुड़ गई या इन्फ्लुएंजा फ्लू जुड़ गया उसके साथ, तो क्या होएगा? तो दो चीजें हैं, एक तो हमारे लेवल पे डायग्नोस्टिक ओवरलैप है कि क्या ये लक्षण डेंगू के हैं, क्या ये लक्षण कोविड के हैं, और तो इन दिनों हमें अपना जो विजिलेंस है, एक सतर्कता का स्तर है, वो थोड़ा कम रखना पड़ेगा। यानी कि थोड़ी भी शंका है, अगर हमारी तबीयत खराब है तो तुरंत अस्पताल में जाएं, घर मत बैठिए, क्योंकि हो सकता है आपको 2 इन्फेक्शन अगर हैं तो एडमिशन करके हम क्लियर कर लेते हैं 1 आध दिन में, और फिर सब ठीक होता है तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ऐसा ही पड़ेगा फ्लू। सब में ज्यादा खतरा जो आएगा सर्दियों में वो ये है कि जो सांस के जरिए और बीमारियां आती हैं, फ्लू है और अनेक कीटाणु हैं जो कि सांस के लंग के इन्फेक्शंस फैलाएंगे, तो इनसे सुरक्षा के जो उपाय हैं वो ही हैं जो कि कोविड से सुरक्षा के उपाय हैं, यानी हाथ धोते रहना, क्योंकि ये हाथ के जरिए, मुंह के जरिए, हाथ मुंह पे लगने से आते हैं ये। दूसरा, मास्क और डिस्टेंसिंग बनाए रखना। तो यही 3 जो हमारे पास टेक्निक्स हैं कोरोना से बचाने के लिए, कोविड से बचाने के लिए, वो ही हमें बचाएंगी आने वाले समय में, सर्दी के समय में, जितने भी कीटाणु, रेस्पिरेटरी वायरसेस और बैक्टीरिया से हमें संक्रमण आने की संभावना है। तो अगर हम ये करेंगे तो कोरोना से भी बचेंगे और उनसे भी बचेंगे। There's a caller who's joined us, गजराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से। जी गजराज जी, पूछिए अपना सवाल। न्यूज़पेपर जो होकर बांटने आता है, अगर वो संक्रमित हो जाता है, वो बांट के जाता है, तो उसका हमें कितना नुकसान है? या बाहर के जो खाने की सामान लेके आते हैं, वो कोई पैक करने वाला अगर वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उससे हमें कितना नुकसान हो पाता है? डॉक्टर विभा। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया ठीक से, प्लीज रिपीट कर देंगे? डॉक्टर विभा, वो पूछ रहे हैं कि सामान जब वो बाहर से लेके आते हैं तो उसकी पैकिंग को लेके पूछ रहे हैं कि क्या उसमें वायरस घर पे आ सकता है? न्यूज़पेपर होगा। हाँ, न्यूज़पेपर जी। हाँ जी, न्यूज़पेपर भी, सामान भी, जो भी बाहर से आता है, प्रेफरेबली उसको थोड़ी देर बाहर ही रहने दीजिए। अगर हो सके न्यूज़पेपर को थोड़ी देर धूप में रहने दीजिए, फिर आप उसको ले सकते हैं रीडिंग के लिए, या 1 डे के लिए भी कई लोग बाहर रहने देते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। बट बाहर से जो भी सामान आता है उसकी पैकिंग को थ्रो अवे करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कुक करनी है कोई चीज तो वैसे भी वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपको पैकिंग फेंक के, और अगर हीट के तो कर सकते हैं, और कुछ चीजें अगर आप बाहर पड़ी भी रहने दे सकते हैं 2-3 दिन के लिए, उसके बाद यूज कर लें तो ठीक है। बट जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको आप बाहर नहीं पड़ा रहने दे सकते, तो आप उनको वॉश कर लीजिएगा बेकिंग सोडा में, और उसके बाद रनिंग वाटर से, फिर उसको ड्राई करके यू कैन पुट इट इन द फ्रिज, या यूज भी कर सकते हैं। In fact, Dr. Gurtu, there are some states that are, considering various measures for better enforcement of the various restrictions that are mandated during these times. One state is considering making wearing of masks mandatory, so that people who are slipping up on this aspect are more vigilant, and there's a deterrent that is created. Though more important would be enforcement, but how important is it for people to continue to wear masks? Some people say that a vaccine may offer 40% protection, but a mask today offers 95% protection. What would you say? Yes, so mask is the ultimate protection when combined with the social distancing and frequent hand washing. It makes it even more effective. About mask, the biggest problem isn't
behavior, the way we are using the masks. Now what do we see? हम घर से बाहर तो निकलते हैं ठीक से पहन के, नाक, nose, mouth and the chin all covered. That's okay. The minute we receive a phone call, जैसे ही फोन आता है तो क्या करते हैं, मास्क को थोड़ा नीचे करके और फिर ऐसे बात करने लगते हैं. अब अकेले हैं उस वक्त तो ठीक है, लेकिन आसपास अगर कोई भी है आपके तो आपको भी संक्रमण लग सकता है, यू कैन गेट इन्फेक्टेड, और आप उनको भी संक्रमण पास इट ऑन टू देम आल्सो. सो जो मास्क का बिहेवियर है उसमें गिरावट आती दिखाई दे रही है सब जगह, दिल्ली में भी सब जगह. उसमें सब में कॉमन चीज ये है कि मास्क तो पहन लेते हैं लेकिन वो कभी तो ठुड्डी पे लटका हुआ है दाढ़ी की तरह, या सब में कॉमन है बात करते हुए जब हमें मास्क लगाना चाहिए बात करते हुए आमने सामने, वो नीचे कर देते हैं और फिर बात करते हैं या फोन पे बात करते हैं. ये सब में बड़ी चीज है कि उस वक्त नाक और मुंह जो ढका होना चाहिए वो नहीं ढका है, एक स्वाभाविक ऐसे करके फिर बात करते हैं. जबकि अगर आप मास्क पहन के भी फोन पे बात करें या वैसे बात करें तो आवाज में कोई गिरावट नहीं आएगी, आपकी आवाज उतनी ही साफ जाएगी फोन पे या आर पार बात करने पे. लेकिन ये एक बिहेवियर है, तो ये एक सब में बड़ा खतरा हुआ है कि मास्क पहनते हुए भी हम ना पहने हुए हैं मास्क समझिए को. तो ये चीज एक दूसरे पे नजर रखनी है. अगर मैं देखता हूँ किसी को भी तो एक पोलाइटली एक उसको बोलना है कि भाई मास्क थोड़ा ऊपर रखिए बात करते हुए, क्योंकि मास्क पहन के और नीचे कर लेना तो कोई फायदा नहीं हुआ. तो ये सब में जरूरी है कि मास्क का एनफोर्समेंट, और ये एनफोर्समेंट पुलिस नहीं करेगी, हम एक दूसरे को हम ही लोग कर पाएंगे आपस में, चाहे कोई भी हो सड़क पे वगैरह. आम थोड़ा आराम से उससे रिक्वेस्ट करनी है कि इससे आपके भी बचाव है और मेरे को भी बचाव है. और दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है इंजीनियरिंग. आप थोड़ा स्ट्रक्चरिंग ऐसे कर दीजिए कि जब आप घुसते हैं तो सब कोई चेक कर रहा है आपके मास्क के टेक्निक, अंदर कोई नज़र रखे हुए है. और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप थोड़ी इंजीनियरिंग कर दीजिए ताकि कोई पास ना आ पाए. तो ये तीन ही साधन हैं जिसमें सब में ज़्यादा जागरूकता और एक दूसरे पे जागरूकता, एक दूसरे को जागरूकता का आदान प्रदान, उसी के ज़रिए हम ये मास्क पे नज़र रख सकते हैं. वहाँ गड़बड़ आ रही है सब में ज़्यादा. जी, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने कही है कि जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक दूसरे को अगर हम प्यार से पोलाइट वे में समझा सके तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है. अगर कोई गलती होती है तो इसको ठीक किया जा सकता है. डॉक्टर विभा आपके पास आएंगे एक सवाल के साथ. ये फेसबुक के ज़रिए हम दर्शक पूछना चाह रही हैं, कमला तिवारी हैं, कि अगर हम कोविड पॉजिटिव हैं तो क्या हमारे पेट को छूने से घर के दूसरे सदस्य अगर दोबारा उसे छूते हैं तो उससे क्या इन्फेक्शन फैल सकती है? देखिए, वैसे तो पेट्स को कोविड नहीं होता है, अभी तक नहीं देखा गया है. सिर्फ एक रिपोर्ट आई थी किसी पेट कैट की किसी कंट्री में, बट ऐसे नहीं होता है. स्टिल अगर प्रिकॉशन तो कि उसके वो कैरी थोड़ा इमीडिएटली आपने टच किया हैंड से वायरस कैरी करके दूसरा जना उसे एकदम टच कैरी कर सकता है वायरस को, तो प्रिकॉशन लेके चले तो बेटर ही है. जो पेशेंट जिसको कोविड है वो अगर आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड ही रहे, तो पेट ना जाए उस रूम में. जी बिल्कुल. Another question is नहीं है कि ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है अभी. So let's err on the side of caution. सावधानी बरतिए. Chandrasekhar Prasad Barapuria is asking on Facebook, all other infectious disease increases in winter. How come the rate of coronavirus infection is decreasing in India in winter? Dr. Gurtu? See, whether the rate of COVID-19 infection increases or decreases is dependent on us, our behavior. The more behavior turns towards crowds, towards not maintaining social distancing of 2 meters, towards not wearing masks, the more it will go and surge. The more our behavior becomes what's called COVID appropriate behavior, maintaining distance, wearing masks properly, and washing our hands after touching this thing. So the COVID and other respiratory infections, including foodborne infections like typhoid, also go down. These are all behavior mediated ups and downs, behaviors as groups, as crowds. So it's up to us. Whether it goes up or down depends on how we behave collectively over the coming ensuing next 3-4 months. राइट. एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मदन राज भंडारी जी हैं मुंबई से. स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. हेलो जी स्वागत है, पूछिए.
मेरा भी कुछ बीमार मैं हूँ ही है, मैं उसमें कसरत करता हूँ, उसमें 5 बजे उठ के, और मेरा कोई बीमारी नहीं है, आज नहीं ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, कुछ नहीं, डायबिटीज ये नहीं है। मदन जी, अगर आपकी टीवी की आवाज आपको सुनाई दे रही है तो आप उसे म्यूट रखें, क्योंकि आपकी आवाज हमें क्लियरली सुनाई तभी देगी। तेज करोगे आवाज टीवी का? जी पूछिए। हाँ, तो अभी क्या करना चाहिए, कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए? मेरा बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ये लोकल ट्रेन चालू नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है बॉम्बे का, जाना आना होता नहीं, कुछ भी नहीं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? डॉक्टर गुर्तू, आप समझ पा रहे हैं ये क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, आवाज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मदन जी, अगर आप दोबारा कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। जी मदन जी, क्या आप पूछ रहे हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए मुंबई में जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं? हाँ, ये लोकल ट्रेन चालू नहीं हो रहा है, इसलिए घर में बैठ कर रहना पड़ता है। ये लोकल ट्रेन चालू घूमेंगे वहाँ पे, हमारा काम काज है वहाँ पे, रनिंग का वगैरह तो हो नहीं रहा है, कितने महीने से बंद है, तो क्या खाएंगे बोलिए? जी कम्यूटिंग इन लोकल ट्रेन्स। जी डॉक्टर गुर्टू, कम्यूटिंग इन लोकल ट्रेन्स के बारे में सवाल है। रिस्ट्रिक्शंस तो महाराष्ट्र में काफ़ी है, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड। क्या कहेंगे आप, क्या बोलेंगे उन लोगों को जो वेट कर रहे हैं अभी पूरी तरीके से चीज़ें पटरी पर आने के लिए? तो जब किसी भी गाड़ी में हम सवार होते हैं, ट्रेन है या बस है या टैक्सी है या गाड़ी है, कार है, कोई भी गाड़ी जिसमें एक बंद सा ढांचा है, वैगन है या कार है, तो एकमात्र जो अच्छा सॉल्यूशन है अपने बचाव के लिए, बहुत सरल है, वो ये है कि आप जो साइड की खिड़कियां हैं वो खोल लीजिए, डाउन कर दीजिए या खोल लीजिए। अगर आर पार दोनों तरफ खिड़कियां हर कार में, हर रेल के डिब्बे में, हर बस में होती हैं, वो खुली हैं, तो आर पार जो हवा का सर्कुलेशन है वो बहुत ही सरल और अच्छा और इफेक्टिव तरीका है आपको कोविड इन्फेक्शन से बचाने का। मास्क तो आप पहने ही हैं पूरी तरह, लेकिन ये जो सर्कुलेशन है, तो खिड़कियां डाउन कर दीजिए, एसी मत रखिए, और वही बचाव है आपका। दूसरा, जब अब स्टेशन में जब ट्रेन आने वाली होती है तो एक घबराहट सी पैदा होती है, कहीं मेरी ट्रेन मिस तो नहीं हो जाएगी। उस घबराहट में होता क्या है, जैसे ही ट्रेन एंटर करती है प्लेटफॉर्म पे, पहली लाइट दिखते ही, आवाज आते ही सब लोग भागते हैं उसकी तरफ, डिब्बे की तरफ। उस वक्त खतरे का वक्त है, वो खतरे का वक्त है, क्योंकि उस वक्त हम एक दूसरे से करीब आ जाते हैं, मास्क डाउन हो जाते हैं, और एक भी अगर उसमें सुपर स्प्रेडर है, एक भी, तो सबको लग जाएगा वहां। तो जब गाड़ी आ रही होती है प्लेटफॉर्म पे, तो एक स्वाभाविक व्यवहार होता है, जो कि अगर कोई टोके नहीं अंदर से या बाहर से, तो भागते हैं हम लोग और चिपक जाते हैं एक दूसरे से, और उस वक्त भूल जाते हैं कि इस वक्त कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, और उसमें एक भी निकला, अगर एक भी, तो सब गए। तो उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, एक नहीं तो अगली गाड़ी आ जाएगी, कोई बात नहीं, भागे ना। तो वो या तो एनफोर्समेंट उस वक्त बहुत जरूरी है, डिस्टेंसिंग। दूसरा, जब हम घुसते हैं तो अब तो सब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं कि 50%, 50% ही सीटें खाली रहती हैं, भरती हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप बन जाती है। मास्क पहने रखें, और जैसे मैंने कहा कि खिड़की के पास जितना आप बैठेंगे उतना सेफ हैं, दोनों तरफ की खिड़कियां जितनी खुली हैं उतना ज्यादा सेफ है। ये बहुत सरल उपाय है, खिड़कियां डाउन कर दीजिए, खोल दीजिए, कोई खतरा नहीं है, मास्क पहन लीजिए, खिड़कियां खोल के आप गाड़ी में जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, बहुत सेफ है। जी डॉक्टर विभा, आपके पास एक सवाल के साथ आएंगे। विमल दुबे पूछना चाह रहे हैं कि आई एम स्टिल पॉजिटिव आफ्टर 15 डेज, इन्हें बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम, आई एम इन होम आइसोलेशन, व्हाट टू डू? See, after 15 days, even if he is positive, he is non-infectious. He can move out of quarantine. There is no problem because most of the times the virus replication stops after 10 days. But in patients who are symptomatic or who are in ICU on ventilator and all, it may be virus for some time. But in an asymptomatic patient who has fully recovered, there is no problem. After 14 days, he can move out. Dr. Gurtu, if you would like to add something? Yeah, usually
if the person is a mild to moderate case, not severe, not in ICU, was not on ventilator, was not critically ill, mild to moderate, usually 14 to 17 days. Non-infectious, a person, mild to moderate person becomes between day 7, certainly up to day 10. For those who are severely ill, critically ill, they take 20 days to become non-infectious. So 14 to 17 days is a reasonable time after which the presumption is that you are non-infectious and you need not get yourself tested again. Dr. Gurtu, in case of reinfection of COVID-19, will the symptoms be similar as they were in the first time around? See, reinfection rates and cases have been very few. Reinfection means infection with a virus, coronavirus, SARS-CoV-2 virus, with a different genetic makeup, a mutant, a different genetic makeup. That has to be proved. And now, when we go by that criterion of reinfection, there are hardly 4 or so cases which have been proved. Rest, when it keeps appearing positive on RT-PCR, these are not necessarily reinfections. They are merely persisting RNA virus pieces, fossils, dead fossils of an old virus which was sometimes alive. But since they are embedded in our respiratory epithelium, and that takes around 3 months, 2 to 3 months for the entire thing to come out and recirculate and the fresh cells to come up. So it can remain as a persistent but dead virus. So recovery on RT-PCR does not mean that the virus is active and transmissible. It may just mean the recovery of a dead virus. True reinfection rate is so rare that it is difficult to diagnose. It is not common at all. As of today, what we understand, it is rare. राइट, एक कॉलर हमारे साथ मुनमुन कपिल गुप्ता हैं गाजियाबाद से। जी पूछिए, स्वागत है आपका। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग एसी जो कोचेस में ट्रेवल करते हैं, ट्रेन्स में, हाउ सेफ दे आर एंड व्हाट प्रिकॉशन दे शुड टेक। राइट, डॉक्टर विभा। हाँ जी, प्रिकॉशंस वही यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो हैं, मास्क पहन के रहिए, एंड वैसे भी ऑल्टरनेट सीट्स पर ही बैठना है, मार्च सीट्स हैं उन बैठना है, और जितना हो सके सर्फेसेस को मत टच करिए। राइट, सैनिटाइज तो कर ही रहे हैं, जैसे मेट्रो में बसेस में दे आर सैनिटाइजिंग द सर्फेसेस। बाकी आके अपना हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए। यू शुड कैरी अ सैनिटाइजर विद यू। ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जो हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉफ कर रहा है या कोई, उसको आप चेक करिए कि भाई अपने एल्बो में कॉफ करे, ऐसे नहीं करे। मास्क पहना हुआ हो, मास्क ठीक से पहना हो, नोज पे माउथ अच्छे से कवर्ड हो, ये नहीं कि नेक पे हैंग कर रहा है या नोज पे नहीं है। तो यही यूनिवर्सल प्रिकॉशंस ही यू हैव टू टेक केयर ऑफ। Dr. Gurtu, a quick response. There's a question that's come in on why there is not much investment or focus on medicines of coronavirus as there is on vaccines. Why so much focus on vaccines and not as much focus on medicines or drugs? Focus is on both, but if we compare the two, treating versus preventing, then it makes it a far more cost-effective strategy at the population level, at the world level even, to go for vaccination. Because vaccination protects, prevents. Prevention is better than cure. Now, as far as the cure goes, it is a lot of research is happening, and it has happened already, and we already know that dexamethasone and low molecular weight heparin given to moderate cases saves lives. Dexamethasone certainly saves lives. We know different ways of giving oxygen without ventilator saves more lives. We know that prone position ventilation helps, saves lives. So all that has happened and is there. But between prevention and cure, it is far more cost effective and better to go for cure using vaccination, or prevention using vaccination rather than cure. Right. So as a bottom rule, as a basic rule, prevention is better than cure. बहुत महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर गुर्तू कही है। A bit more, even though research is progressing on the front of antivirals. Yes, it is progressing. राइट, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर गुर्तू कही। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि सावधानी ही इलाज से ज़्यादा बेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर्स का, डॉक्टर अनिल गुर्तू, डॉक्टर विभा मेहता, हमारे साथ डॉक्टर स्पीक में
हिस्सा लेने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही मुनमुन। Absolutely. Do remember to keep wearing your mask whenever you venture out. With that advice, stay safe, stay healthy. Thanks for watching. नमस्कार।